Good morning, everyone. Welcome to Community Reading Sunday by the Bibliophile family. Today, we will be discussing chapter 49 and 50 of the book Focus on What Matters by Darius Farooq by Kamal Dan sir. Before transferring the call to Kamal Dan sir, I would like to remind everyone that let's be mindful of our words and our choice of words during the sessions and the words we speak resonate what we are learning and which community we are a part of. So I would request each and every one of you whenever you are being grateful to someone or passing any comments towards anyone, please be mindful of your words. And I do not recommend saying anything that might be of a bad taste. Secondly, I always say this in the sessions. I don't tell anyone in the personal chats so that it sets an example towards everyone. हम ज्ञान बहुत देते हैं, हम फीडबैक बहुत देते हैं, पर हम खुद पे कितना अमल कर रहे हैं वो भी सोचने की बात है. So let's be in our limits. Let's not use words that I have to cut short during the in the YouTube videos. So yes, with the serious strict warning. What do you, Kamal sir? Okay, ji, thank you. Thank you so much, Palak, and a very good morning to the TVF family. I'm so grateful once again I got this opportunity to present two more chapters of this wonderful book. And again, so grateful for the person who recommended this book. It's really amazing book, small letters but very impactful. So today we are completing the half century, so a big round of applause. It's not easy engaging every weekend two chapters, and you can imagine two chapters and every weekend. और शायद हमने एक आधा मिस भी किया होगा, मेरे से में एक मिस हो गया था, मुझे याद है. And 50 chapters, so you can imagine, है ना, इतने टाइम से हम करते आ रहे हैं. So that consistency is the thing which always works. So today we are on the chapter 49 and 50, and it comes under managing your career. Like there are different parameters in our life where we want to grow, like health, money, career, relationship. कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, and we all want to create the balance. So there is stoic philosophy, and which is telling us how we should live our life in a more mindful and a better way, because everyone have their own perspective. तो इनका क्या perspective है, उनके हिसाब से they have. हाँ जी, गुड मॉर्निंग रोहित. सो इनका क्या पर्सपेक्टिव है स्टोइक फिलोसफी का अबाउट द करियर? इन दीज टू चैप्टर्स वी विल अंडरस्टैंड. एंड लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 49. एंड चैप्टर 49 इज सेइंग ऑन डूइंग व्हाट लाइफ एक्सपेक्ट्स ऑफ यू. हम बचपन से सुनते आए हैं कि यू कैन बी एनीथिंग यू वांट, सो हम हार्ड वर्क करते हैं. नहीं नहीं, आई कैन बी अ क्रिकेटर, सो हम सुबह उठते हैं, पार्क में जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं. यू कैन बी अ पेंटर, हम पेंट ब्रश उठाते हैं, कुछ भी पेंट करने लग जाते हैं. यू कैन बी एनीथिंग, हम बचपन से सुनते हैं. एंड देन इन ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ वी वर्क हार्ड, यू नो, टू बिकम दैट, बिकॉज हमारे माइंड के अंदर वो कंडीशनिंग थी कि वी कैन बी एनीथिंग. तो ऑथर इज सेइंग हियर कि दो दिस इज very motivational, because when something motivates you, you try to put your effort into that thing, and you do all good in your all areas of your life. Somebody said you look good, your health is good, so you start focusing more on like gymming, exercising, yoga and all. And he's saying that this is inspiring, but this is false. This is inspiring, but this is false. हम ये भी सुनते आए हैं, and this also motivates us that you are the director of your own movie. हम डायरेक्टर तो नहीं है, बट हम एक्टर जरूर है, द ऑथर इज सेइंग. क्योंकि इंस्पायरिंग तो है, लेकिन स्टोइक फिलोसफी कहती है कि उनका लाइफ के लिए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. तो माय ब्रदर इज एन एक्टर, शायद कुछ लोग जानते होंगे, ही इज अ थिएटर एक्टर. हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्त हु जॉइन लेटर. ललिता जी, प्रमिला जी. सो वो मुझे एक लाइन बोलता था, आई थिंक आई हैव शेयर्ड दिस लाइन अर्लियर आल्सो, कि और इस पूरे जो चैप्टर का क्रक्स है वही लाइन है. सो आई विल शेयर दैट लाइन लिटिल लेटर. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड what the author is trying to convey us, that he's saying that consider yourself as an actor of a play, a theater play, and you are just an actor. Now you don't know what kind of play it is. Is it a short play or a small play or a big movie, a blockbuster movie?
you don't know in that movie or in that play which character the director is thinking about you. He may give you a role of a king, a role of common people, just a crowd. He could give you a role of something very special, a villain, a rich person, a poor person. So that's director's call. You can't choose your role. That's director's call, what role he wants to give you. Now, what you can do, you can't say अभी मुझे ये रोल मिलेगा, then I'll do this movie or this theater and otherwise no. हाँ, at that level अगर आप पहुंच जाते हो कि भैया मैं शाहरुख खान हूँ, अभी मुझे यही रोल चाहिए तो मुझे यही चाहिए, हाँ, that's a different perspective. But in general, we can't say कि हमें ये रोल चाहिए. It's director's call because he has the idea कि इस इंसान के लिए कौन सा रोल बेटर रहेगा. I have designed a movie, I have designed a play, and in that play शेर सिंह सर को ये रोल दिया जा सकता है. इन दिस प्ले श्वेता मैम को ये रोल दिया जा सकता है. तो दे कैन डिसाइड. जितनी भी मूवीज बनती है, जितने भी प्लेस होते हैं, द डायरेक्टर डिसाइड कि ये रोल इस इंसान पे जचेगा. मतलब ही कैन प्ले दिस रोल बेटर. दैट्स व्हाई the director gives that role to that actor. So here the author is saying that you are not the director of your life. You are just an actor, and you don't even have the choice to choose your role. The role has been given to you only by the director. You just need to do what the director is saying to you. He'll say this dialogue in this expression. So you have to do. You can't say, no, 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 I'll improvise, अपने हिसाब से कर लेता हूँ. No. Yes, Rohit ji, you wanna say something? हाँ सर सर मैं आपको कह रहा था कि जो रोल है हम लोग को ऐसा नहीं है कि कोई हमें हमारे अकॉर्डिंग रोल मिलता है। ये तो हमारे को कई बार अनएक्सपेक्टेड रोल्स भी आ जाते हैं लाइफ में। हाँ जी, बिल्कुल. एनीथिंग सडनली हैपेंड और हम उस रोल में हम अपने आप को पाते हैं एंड वी हैव टू अडेप्ट आवरसेल्फ विद द सेम रोल। आप करेक्ट. बिल्कुल सही कह रहे हैं पर भगवान के मैं जो नहीं जी, ये तो स्टोइक फिलोसफी कह रही है. मैं तो जो बुक का जो उन्होंने बताया वो बताता हूँ. तो ही सेइंग डेफिनेटली वी ऑल हैव आवर ओन एक्सपीरियंस, और दिस इज करेक्ट. रोहित जी ने बोला कि सम टाइम कुछ रोल ऐसे होते हैं हमारी लाइफ के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं. जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लूँ, आई वाज नॉट इन गुड इन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. आई वाज वेरी शाय. मतलब आज से मैं 8-10 साल पहले की बात करूँ, मेरे हाथ पैर कांप जाते थे स्टेज पे जाने में. कैमरे के सामने तो बहुत दूर की बात है आना. सो अभी ये रोल मिला कि आप आओ, 2 चैप्टर प्रेजेंट करो, बोलो सबके सामने. तो इट वाज अनएक्सपेक्टेड. आई कुड नॉट एक्सपेक्ट कि मैं ये कभी करूंगा भी ऐसे. इसके अलावा भी डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर, जब व्हेन यू गेट मैरिड, आप सिर्फ एक हस्बैंड नहीं बनते हो, एंड आप दामाद भी बन जाते हो, अब जीजा जी भी बन जाते हो. इतने सारे रोल आ जाते हैं आपकी लाइफ के अंदर और सब रोल निभाने हैं. तो द ऑथर इज सेइंग कि यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर रोल assigned to you in your life skillfully. Same way, like in a play, in a theater play, like a director is giving a role to an actor, and he just need to follow the direction of the director, and accordingly he need to play his role skillfully, because the director has chosen you कि आपके ऊपर यही role suit करेगा, and you need to play that role. Same way the author is saying in life also we may get different multiple roles. So this is our responsibility, that whatever the role has been given to us, that assigned to us, we need to do it skillfully. Good morning, Shir Singh ji. Okay, yeah. So अब मैं वो लाइन बोलता हूँ जो मेरे भाई मुझे बोलते हैं, because he's a theater actor and he says this line many times. I think I had shared here also कि अपने किरदार को, whatever the role has been assigned to you, कि अपने किरदार को कुछ इस शिद्दत के साथ निभाओ कि पूरी कायनात, ना सॉरी आई मिक्स टू डायलेक्ट्स, कि अपने किरदार को कुछ इस शिद्दत के साथ निभाइए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें. आई विल रिपीट द लाइन कि अपने किरदार को, हर किरदार को, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, अ टीचर, अ बॉस, एन एम्प्लॉय, अ हस्बैंड, अ वाइफ, अ सिस्टर, अ ब्रदर, जो भी रोल आपकी लाइफ के अंदर है, बिकॉज वी प्ले मल्टीपल रोल्स, राइट. तो अपने हर एक किरदार को इस शिद्दत के साथ निभाइए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें. तो यू हैव प्लेड योर रोल सो स्किलफुली बिकॉज यू हैव असाइन टू इट, बिकॉज द डायरेक्टर नोस कि ये रोल आपके लिए ही बना है. आगे वो कहते हैं कि देयर आर द थिंग्स इन आवर लाइफ विच हैंडेड टू अस बट वी कांट चेंज दोज थिंग्स. अब सपोज आई गॉट मैरिड एंड आई गेट अ पार्टनर, एंड अभी
the conversation between me and my partner is not good, the chemistry is not good, but that has been assigned to me. हम कई बार कहते हैं यार माई पार्टनर इज नॉट गुड, और मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है ना, मेरी कंपनी अच्छी नहीं है. सो दैट रोल हैज बीन असाइंड टू यू and that's not your choice. So in that case you can't change those things. Definitely few things you can change, but not everything. Major role you can't change. So in that case you need to take the responsibility of your role and play it skillfully. The author talked about that Warren Buffett is very humble person, और जब भी उनसे पूछा जाता था that you are the most successful investor of the time, तो हाउ, तो वो कहते थे कि द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माई विनिंग इज ओवेरियन लॉटरी. अब ओवेरियन लॉटरी क्या है कि भाई मैं अमेरिका में पैदा हुआ, एक गोरा पैदा हुआ, और ऐसे टाइम पे पैदा हुआ जब वैल्यू इन्वेस्टिंग समथिंग, आई मीन आई डोंट नो अबाउट द यूएस इन्वेस्टिंग थिंग्स. सो ही सेइंग आई born in US, a white male, during a time when the founder of value investing Benjamin lived. अब इसका मैं इंडियन एग्जांपल लेके देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर इज अ सक्सेसफुल, मतलब वी ऑल कॉल हिम द गॉड ऑफ क्रिकेट. तो जो सर्कमस्टांसेस थे वो ऐसे टाइम पर पैदा हुए जब क्रिकेट बूम कर रहा था, और इंडिया उस टाइम क्रिकेट के अंदर एक वर्ल्ड कप जीता. सचिन उस टाइम आए जब हेलमेट्स मतलब नहीं होते थे, या फिर हेलमेट्स का इतना सेफ्टी नहीं होती थी. एंड कैन वी लोअर द रेज्ड हैंड? यस रोहित जी, अपना हाथ नीचे कर लीजिए, दर्द हो जाएगा यार. ठीक है. सॉरी सर, आई डिडंट नो नहीं, how अरे to इट्स do फाइन. it. Okay, हाउ टू okay, डू इट सर? वहां पे आ रहा होगा ऑप्शन, चेक करिए, 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, लोअर योर हैंड. okay, I'll do that. हाँ, एंड इंस्टेड यू कैन टर्न योर कैमरा ऑन. सबसे बढ़िया ना, हाथ नीचे कर लीजिए, कैमरा ऑन कर दीजिए, सबसे बढ़िया. आगे बढ़ते हैं जी. थैंक यू जैनब. सो द ऑथर इज सेइंग कि my मतलब Warren Buffett is saying that my biggest winning, the reason was, one of the reason is the ovarian lottery, means जहां मैं पैदा हुआ, जिस circumstances में पैदा हुआ, those all circumstances, उस टाइम जो लोग थे मेरी हेल्प करी जिन लोगों ने, तो वो चीजें मुझे काफी इंस्पायरिंग करी. तो शायद उस समय ये मेरे लिए प्लस पॉइंट बन गया. और हमारी लाइफ के अंदर भी ऐसा होता है कि हम कहाँ पैदा हो रहे हैं, मतलब दिस इज नॉट डेफिनेटली इन आवर हैंड, लेकिन एक लॉटरी है, एक तरह का प्लस पॉइंट है कि मैं ऐसे समय पे पैदा हुआ हूँ कि जहाँ पे मुझे एक अच्छा घर मिला, अच्छे पेरेंट्स मिले, और शायद मैं ऐसी जगह पे पैदा हुआ, ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ पे कल्चर अच्छा था, नेचर में रहते थे. बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं. तो आपकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस या आपकी जो भी सक्सेस है लाइफ की, एज पर द ऑथर ही सेइंग कि आप जहाँ पैदा हुए, जिस सर्कमस्टांसेस में पैदा हुए, दैट ऑल्सो मैटर्स, एंड दैट्स अ प्लस पॉइंट. सो he's saying that where you born, at what time, in what condition, that matters also in your success. But in today's time everything is limitless. People have potential. हमने देखा होगा यूट्यूबर्स अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, भैया देखो मैंने गाड़ी ले ली. सौरभ जोशी का नाम आई थिंक बहुत लोगों ने सुना होगा. एक उत्तराखंड का लड़का है, आई थिंक ही इज जस्ट 25-26 ईयर्स ओल्ड, एंड उसने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया था जब यूट्यूब लोग बहुत जानते नहीं थे. And currently he is like very famous personality. He is a public figure and he is earning in lakhs. I think शायद करोड़ में कमाते हैं वो मंथ के. 3 से 4 करोड़ रुपए मंथली इनकम है उनकी, यूट्यूब और जितने भी सोशल मीडिया उनका प्लेटफॉर्म है. सो अभी क्या है ना, पोटेंशियल भी है लोगों के पास, प्लेटफॉर्म भी है, फैसिलिटीज भी है. तो टाइम हैज चेंज. पहले का जो स्ट्रगलिंग टाइम था, अभी का टाइम, दैट्स एंटायरली डिफरेंट. सो पीपल आर एक्सप्लोरिंग. नमस्ते रोहित जी. So he's saying that we see social media and people are showing how luxury life they are living, or sometimes we like get comparison. यार he is doing, I'm not able to do. मैं भी स्टार्ट करता हूँ, शायद मेरे भी मिलियन फॉलोवर्स हो जाए, शायद मुझे भी लैक्स एंड करोड़ में इनकम आने लगे. तो दैट कैन बी डन बिकॉज अभी पोटेंशियल भी है और फैसिलिटीज भी अवेलेबल है. सो डिस्पाइट एवरीथिंग, स्टिल नॉट एवरीवन रीच एट द टॉप, एंड दैट्स द नेचर ऑफ लाइफ. जरूरी नहीं है कि एक क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, एक टीचर, सेम टीचर सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ा रही है, सेम सब्जेक्ट, सेम लाइंस, एवरीथिंग इज सेम, बट हर बच्चा टॉप पर आएगा, फर्स्ट आएगा, दैट्स नॉट मैंडेटरी, है ना. और यही लाइफ है. तो ऑथर इज सेइंग कि कंपैरिजन के चक्कर में हम क्या करते हैं ना, मतलब आजकल मतलब पेरेंट्स, कि मेरा बच्चा हर फील्ड में, डांस करता है तो डांस में सबसे आगे होना चाहिए, आर्ट करते हैं आर्ट में सबसे आगे होना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलता है स्पोर्ट्स में आगे.
एकेडमिक सबसे आगे. सो इन स्पाइट ऑफ डूइंग दिस कंपटीशन वाली चीज, उसको ये देखना है कि मेरा बच्चा जैसा भी है अपने आप में वो बेस्ट दे रहा है, दैट्स इट. हमें अपनी लाइफ में भी ये देखना है कि वेर एवर वी आर, वट एवर वी डू, definitely this is a time of hard competition, but in spite of the competition just focus on yourself. जो रोल आपको मिला है, what the best you can give, कि हाँ this is my 100%, now the result is not in my hand. कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, है ना. मतलब मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कर्म करने में है, उसके फल का मैं उत्तराधिकारी नहीं हूँ. I'm not responsible for the result, whatever I have done. Definitely, if I'll study every single day, I don't need to take the tension of the exam time because I'm doing my practice every day. But if I'll study only during the exam time, definitely the stress will come, not only to me, even for my parents. है ना. तो हमें ये देखना है कि हमें जो रोल असाइन हुआ है, हम उसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभा रहे हैं. एंड द ऑथर इज सेइंग कि आज के टाइम में व्हेन देयर इज सो मच कंपटीशन, इंस्टेड ऑफ running behind the competition, focus on yourself, what the best you can give. So we think our life is bad and expect that we could or should be extraordinary and limitless. ये लाइन मुझे काफी अच्छी लगी. हम बात करते हैं कि we all have that potential, we all can be extraordinary and we can be the best version of our life. But deep down we think यार अभी मेरी जिंदगी तो बिल्कुल स्टक हो चुकी है, शायद किसी एरिया में, मे बी रिलेशनशिप, मे बी करियर, मे बी हेल्थ, maybe money wise, kahin na kahin we all feel little stuck and expect that we are thinking we become limitless, we become extraordinary. तो until and unless आप जब तक उस चीजों को sort out नहीं करोगे, you can't expect that I will become extraordinary. Hello Amici, hello Ramesh sir. So the thing is, the role, the responsibility that has been assigned to you, just focus on that role. Just focus on that responsibility. The result is not in the hand, and you just need to focus on the basics. Because when you focus on the basics, definitely you become extraordinary. I always believe in the consistency and the habit building things. If I'm doing something, definitely that's compounding. If I'm doing pranayam every day, I don't need to worry about my immunity because I'm already doing something every single day. Do it 5 minutes or 10 minutes every day, but I'm doing. And that's not about the thing of bragging. It's about just focus on what you're doing and you become extraordinary. So extraordinary or the limitless is the byproduct. You just don't focus on मुझे extraordinary बनना है and you are just thinking about the result. You are not focusing on the process. अगर आज मतलब पीपल आर प्रेजिंग विराट कोहली, इन ही इज द टॉप ऑफ द बैट्समैन, ठीक है, हर वे में, फिटनेस के मामले में, बैटिंग के मामले में, फील्डिंग के मामले में, एटीट्यूड, स्पिरिचुअलिटी में भी अभी. सो पीपल आर प्रेजिंग बट ही इज नॉट फोकसिंग कि मुझे टॉप बैट्समैन बनना है, और ही इज जस्ट फोकसिंग एंड नॉट वर्किंग ऑन हिमसेल्फ. ही इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ कंटिन्यूसली, दैट्स व्हाई ही इज रिफ्लेक्टिंग. उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके जेस्चर्स में, उसकी एनर्जी लेवल में वी कैन सी. और जो भी रिजल्ट आता है दैट्स द बाय प्रोडक्ट. डेफिनेटली अदर थिंग्स ऑल्सो मैटर्स, बट जो एक्स्ट्रॉर्डनरी वाली चीज है या लिमिटलेस वाली चीज है, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट. यू जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वही रोल आपको मिला गया. तो अगेन, इन्फ्लुएंसिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर्स ऑफ द सोशल मीडिया, दे आर अर्निंग इन मिलियंस एंड वी थिंक दैट हमारे अकाउंट में भी $1,000,000 होने चाहिए, हम भी वर्ल्ड के टॉप में चैंपियन होने चाहिए, अपनी फील्ड के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर वी शुड बी एट द टॉप. और हमारे अगर सोशल मीडिया हम चलाते हैं तो वहाँ पे भी मिलियन फॉलोअर्स हैं. एक्सपेक्टेशन तो शेयरिंग भी बहुत सारी होती है लोगों की, है ना, इच्छाएं तो बहुत सारी होती है, बट दैट्स नॉट द रियल लाइफ. रियल लाइफ इज द सिंपल लाइफ, इज द रियल लाइफ where we are not pretending to be the best, but we are focusing what the best we can do. That's it. अगर मुझे बेस्ट बनना है, आई नीड टू फोकस ऑन द प्रोसेस विदाउट थिंकिंग मुझे बेस्ट बनना है. बेस्ट आप बन जाओगे व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द प्रोसेस. सो देयर आर द थिंग्स आउट ऑफ योर कंट्रोल एंड नाउ इट्स नॉट लाइक बिफोर. पहले क्या होता था, आप गरीब पैदा और गरीब मर जाओगे. अभी ऐसा नहीं है. You even take the birth in the poor family but still you have the potential and opportunity. सबसे बड़ी चीज है. डे टू डे रूटीन इज एक्चुअली द रियल लाइफ. डेफिनेटली समटाइम पीपल से यार लाइफ के अंदर ना बहुत मसाला होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ होनी चाहिए, आई शुड बी वेरी फेमस, बट बोरिंग इज द रियल लाइफ. बोरिंग होना भी बहुत जरूरी है यार. बोरिंग लाइफ है, आज कुछ भी मजा नहीं आ रहा करने में. हाँ, आज कमल सर का सेशन है, क्या यार, क्या है ना, कोई पीपीटी ना कुछ है, बोरिंग से. पीपल कीप लुकिंग फॉर समथिंग. यस, लेट मी ओपन द मैसेज वंस अगेन. I missed the message. People are looking for something within is not really real.
यस, तो हमें ये चीज देखना है कि रियलिटी क्या है, इंस्टेड ऑफ लिविंग इन ड्रीम लैंड यू शुड फोकस की रियलिटी क्या है। रियलिटी इज दिस लाइफ। घर में आर्ग्यूमेंट भी होगा, डेफिनेटली प्यार भी होगा, फाइट भी होगी, सक्सेस भी मिलेगी, फेलियर्स भी होंगे, हम बीमार भी पड़ेंगे, हम हेल्दी भी फील करेंगे, हम किसी दिन बुक्स पढ़ेंगे, किसी दिन नहीं भी पढ़ेंगे, किसी ने सेशन आज ज्वाइन किया, किसी ने नहीं किया। तो लाइफ इज लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन नहीं होती कभी भी, इट्स लाइक अप्स एंड डाउन, एंड दैट्स कॉल्ड द लाइफ। सो द ट्रुथ इज दैट ओवरियन लॉटरी विल नेवर चेंज। जहाँ हम पैदा हुए तो चेंज नहीं कर सकते ना, दैट्स नॉट इन आवर हैंड कि हम किसके घर में पैदा हुए, कौन सी जगह पे पैदा हुए, किस टाइम पैदा हुए, कौन से एरा में पैदा हुए, दैट्स नॉट इन आवर हैंड। दैट ओवेरियन लॉटरी इज नॉट वी कैन चेंज। योर फैमिली, योर कलर, योर टाइम, प्लेस, आप कैसे दिखते हो, वो सब चीजें जैसे पैदा हुए हो, such things will never change, but we still can make the best what's given to us, है ना। हमारे पास जो भी है, this is the right time. Don't wait for the right time to do something to change. This is the right time, this is the best opportunity. यही आपका रोल आपको मिला है, एंड इसी रोल को आपको शिद्दत से निभाना है। सो लास्ट में अगेन द ऑथर इज सेइंग, जो मेरे भाई ने भी बोला था, कि अपने हर किरदार को, अपने जीवन के हर किरदार को, वट एवर द रोल यू आर प्लेइंग इन योर ऑफिस, एट योर होम, वेर एवर यू आर, अपने हर किरदार को कुछ इस शिद्दत के साथ निभाइए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। ठीक है जी। तो जब हम जाएं तो हमारी बातें हों या ना हो, लेकिन हमने अपना बेस्ट दिया। सो हियर एंड्स द चैप्टर नंबर 49, एंड द क्रक्स इज दिस ओनली, कि जो मैंने लाइन बोली लास्ट में, कि वट एवर द रोल हैज बीन असाइंड टू यू, यू आर नॉट द डायरेक्टर ऑफ योर मूवी, यू आर द एक्टर, एंड डायरेक्टर इज गिविंग यू द रोल, ही इज द डायरेक्टर, एंड वट एवर द रोल हैज बीन असाइंड टू यू, डोंट क्रिप कि यार मेरे पास ये नहीं है और वो नहीं है, शायद मेरी हाइट अच्छी होती तो बेटर होता, शायद मुझे सुंदर सी लड़की मिल जाती तो बेटर होता, मुझे अच्छी जॉब मिल जाती तो बेटर होता, मेरे पास बड़ी वाली गाड़ी होनी चाहिए थी, पड़ोसी के पास है, मेरे पास है। तो ये लाइफ के चलते रहेंगे, लेकिन आपको पता है कि मेरे पास यही है, accept it and be grateful। सबसे बड़ी चीज, be grateful, at least you have this। so many people are living such miserable life, or the life which you are living, they dream for this life, and we are already living so many dreams life। so be grateful for this life, and whatever the role has been assigned to you, उसको बड़ी शिद्दत के साथ निभाइए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 49 ओवर होता है। इफ एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग, please share, then we'll start the next chapter, and these two chapter comes under managing your career, so you can relate this thing with the career, कि हमारी ऑफिस के अंदर या हम जो भी बिजनेस करते हैं उसके अंदर वट एवर द रोल हैज बीन असाइंड टू यू, हमें जिस भी कंडीशन में हमारा बिजनेस मिला है, जिस भी कंडीशन में हमें जो बॉस मिले हैं, या हम खुद एक बॉस हैं, या वट एवर द कंडीशन इन योर करियर यू आर, वट एवर द रोल हैज बीन असाइंड टू यू, जस्ट फोकस ऑन दैट रोल, कि यही मेरे को रोल मिलना था, मैं इसी के काबिल हूँ और मैं इसको बेहतर बना सकता हूँ। तो अपने ऊपर काम करिए, आप बेहतर बनते जाएंगे। ओके, सो या दिस इज all from my side for chapter number 49। if any of you have any question or anything you want to share, please share, otherwise we'll move to the next chapter। yes Rohit ji। सर मैं कह रहा था कि ना व्हाट माय लाइफ एक्सपीरियंस इज, बिकॉज आई डील विद मेनी स्टूडेंट्स एंड ऑल, कि इनिशियल एज में यू हैव अ पैशन, ग्रेजुअली व्हेन यू मूव ऑन विद थिंग्स, तब आपके लाइफ के अंदर रिग्रेट्स आते हैं, एंड लेटर ऑन एक्सेप्टेंस इज देयर, बिकॉज एन एफर्ट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। डेफिनेटली। लाइफ के अंदर एफर्ट आपका हमेशा रिक्वायर्ड रहता है, पर वो जो लाइफ के अंदर एज है ना, इट मेक्स यू एक्सेप्ट द थिंग्स देन। Okay, so what things have been made for you, what the roles have been assigned to you, generally yes, accept it. Yes, this is what I am made for and I am doing right now. So वंडरफुल। it's great. बहुत बढ़िया रोहित जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, एंड डेफिनेटली एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है, जो शायद विद मैच्योरिटी, विद टाइम इट कम्स। इट्स नॉट लाइक कि आज एकदम से द थिंग्स हमने जस्ट पढ़ी कि हाँ यार, अभी तो कमल सर ने सुबह बोला था कि अपना रोल अच्छे से निभाओ, जैसे ही मैं रोल निभाने लगा मेरे बॉस ने कुछ बोल दिया और फिर मेरा दिमाग घूम गया, छोड़ो रोल की, मैं डायरेक्टर को ही उड़ाते हैं वैसा। सर यस शेयर सिंह सर। यंग एज के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती है, ये मैच्योरिटी के साथ ही डेवलप होती है। वही वही हम सेइंग, विद आनी भी नहीं मैच्योरिटी चाहिए एंड यंग एज में टाइम। एक्सेप्टेंस। हाँ। सर यस, थैंक यू सर, थैंक यू रोहित जी, वंडरफुल सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी Yes, शेर सिंह सर। thank you, sir. First of all, I want to welcome the Rohit sir. Rohit sir is my English teacher for अरे last वाह। years.
सर he's पार्डन मी अगर मेरी तो इंग्लिश टूटी फूटी सी है, सो प्लीज पार्डन मी. Yes, sir, you have been doing good. Thank you, Sher Singh ji. yes, Rohit sir is amazing personality, and after when I met her in 2009 or 10, and since he is my mentor in English, not only the English, in my life also. Whenever I feel that I need guidance, Rohit sir is always here. And Rohit sir, thank you very much for joining the session. शेर सिंह जी, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो यार, मैं तो यू आर मेकिंग मी नर्वस. ओके, थैंक यू. थैंक Yes, यू. थैंक यू सर, थैंक यू शेर सिंह जी. ओके. तो शेर सिंह जी, उनको वो रोल मिला है और आपको भी उनका रोल मिला है. ही इज द डायरेक्टर अभी हैं, यू आर द एक्टर. जो भी वो सिखा रहे अच्छे से सीखिए. And yes, we are extremely grateful to each one of you, those who have joined and giving your Sunday morning to us. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Kamal That's sir, हाँ जी सर. we can take selfie because we are हाँ far. जी बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए यार. सेल्फी के लिए तो शेर सिंह सर सबको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, I ये तो बड़ी request दिक्कत है. Mr. अरे sir, कर तो रहे. yes, अरे वाह. sir, अभी तक लग रहा मैं स्क्रीन से बातें कर रहा था. हेलो आंचल जी. I request थैंक यू. you can sit. इतनी सुंदर सुंदर स्माइल है रोमित सर. कहाँ, क्या Yes, बात है. अमी जी प्लीज टर्न योर कैमरा ऑन. yes, Zainab ji, ready everyone? Yes, Lalita ma'am. Okay, no issue. Ready? One second. Smile. Thank you. थैंक Thank यू. you everyone. थैंक यू. इट्स फाइन अमी जी. थैंक यू जी. थैंक यू सो मच एवरीवन. किचन क्वीन मोड ऑन. हाँ, अभी तो रोल मिला है शेफ का, तो अभी उस रोल को शिद्दत के साथ निभाइए. सुनते रहिए लेकिन सब्जी मत जलाइए. हाँ जी आगे बढ़ते हैं. एंड लेट्स सेलिब्रेट बिकॉज वी हैव रीच्ड टू आवर चैप्टर नंबर 50, द हाफ सेंचुरी. और दिस चैप्टर आल्सो कम्स अंडर दैट सेम टॉपिक, मैनेजिंग योर करियर. एंड द चैप्टर इज सेइंग ऑन बीइंग योर ओन विटनेस, है ना. अब हम लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि भाई दुनिया हमारी तारीफ करे. मैं को ऐसी ही शर्ट पहनी थी ताकि शेर सिंह सर बोले अरे सर शर्ट बड़ी अच्छी है, कहाँ से लिए, है ना. ऐसे ही बैकग्राउंड में बैठना था ताकि लोग कहे आपका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लगा. सही बात है ना जी. ऐसे ही लाइफ के अंदर वी डू सो मेनी थिंग्स just to get the approval from the public, approval from even from our loved ones, approval from everyone around us, so that we feel happy. हाँ, we feel good that whatever I'm doing, हाँ, I'm doing good. मैंने सही शर्ट खरीदी है. लेकिन अगर कोई बोल दे रहे यार क्या सर बकवास शर्ट पहनी हुई है आपने, हाँ जैसे कमल सर की किचन के पिक्स, सो एवरीवन अप्रिशिएट दिस डेफिनेटली. मतलब मैं ऐसा फील करता हूँ कि हाँ यार वैलिडेशन चाहिए मुझे, अप्रूवल चाहिए समटाइम्स. बट at the same time, honestly telling, at the same time, there are many things I do जिसके लिए मुझे अप्रूवल नहीं चाहिए. लाइक जैसे स्टार्टिंग ऑफ द सेशन पलक वाज आस्किंग कि सर आपने अपना मॉर्निंग डिटॉक्स रिचुअल करा. आई डिड इट. अभी मैं डेली एवरी संडे आई डू डिटॉक्स. मैं जल नीति क्रिया करता हूँ, मैं बहुत सारी और भी प्रैक्टिस करता हूँ. अदर देन दिस ऑल्सो आई डू सो मेनी थिंग्स जहाँ पे मुझे किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए. वहाँ पे मेरी कंसिस्टेंसी, मैं खुद ही अपना वैलिडेशन दे देता हूँ और मैं खुद को ही मोटिवेट कर लेता हूँ और खुद कहता हूँ कि कोई नहीं भी देख रहा, स्टिल क्लैप फॉर योरसेल्फ, एटलीस्ट यू आर डूइंग इट कंसिस्टेंटली. एंड जस्ट एक छोटी सी चीज बताता हूँ अगेन, नॉट टू बोस्ट दिस थिंग. फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 220 days आई एम डूइंग 108 गायत्री मंत्र चैंटिंग एवरी सिंगल डे. ठीक है, तो मुझे किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए उन चीजों के लिए. और भी बहुत सारी चीजें हम लाइफ में, हम पर्सनल भी, मतलब इफ यू ऑब्जर्व योर लाइफ यू विल सी दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप खुद के लिए करते हैं एंड यू डोंट नीड टू इवन टेल पीपल दैट आई एम डूइंग दिस थिंग. दैट इज समथिंग वेरी पर्सनल एंड दैट इज एडिंग वैल्यू इन योर लाइफ. You are doing it for your own self, for building yourself, for becoming the best version of yourself. You are doing those things and you are not saying this to world where you don't need any validation, you don't need people's approval for that, and you are enjoying that thing. ठीक है, लेकिन there are so many things definitely we do to get the validation from the society, from the people around us. तो ये चैप्टर इसी चीज के बारे में है, on being your own witness. तो ही सेइंग कि अभी जब लॉकडाउन लगा और लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा स्टार्ट किया.
क्योंकि क्या होता है ना, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है, बॉस होते हैं, कलीग्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं, यू बिकम योर ओन विटनेस, तब सेल्फ रियलाइजेशन ज्यादा होता है, यार मैं कैसा बिहेव करता हूँ, मैं कैसा बोलता हूँ, मैं कैसा काम करता हूँ, जब मुझे कोई नहीं देख रहा तब मैं क्या हूँ। मैंने एक लाइन पहले शेयर की थी, मैं बुक पढ़ रहा था, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स, उसके अंदर थी लाइन कि इफ हु आई एम इज व्हाट आई हैव, एंड इफ व्हाट आई हैव इज लॉस्ट, देन हु आई एम। और वो मैं रिलेट कर पाया, because when nobody is watching you, when nobody is appreciating you, the things you are doing consistently and still you are doing it, means you are self motivated. You don't need approval or validation from the others to doing such things, and you should feel proud on those things, है ना? You should tap your back and appreciate कि भाई बहुत अच्छा कर रहा है तू, keep doing it. कोई नहीं भी तारीफ करेगा, अपनी तारीफ खुद करो. So he is saying कि when you spend time with yourself, you get enough time for the self realization. And we all get motivated by getting approval of the other people. चाहे जॉब हो, हम बुक्स पढ़ते हो, पिक्चर्स हम क्लिक करते हैं, हम कहीं जाते हैं, पिक्चर्स ऐसे क्लिक करते हैं ताकि हम इसको सोशल मीडिया पे डालें, एंड वी गेट सो मेनी लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन दोज पिक्चर्स और वीडियोस. वी टेंड टू रीड समटाइम्स सच बुक्स वेयर पीपल अप्रिशिएट, यार बड़ी अच्छी बुक पढ़ रहा है यार, इट्स रियली अमेजिंग. बट देयर आर सो मेनी थिंग्स अगेन इन आवर लाइफ, चाहे हम कोई बुक पढ़ते हैं या हम जो कपड़े पहनते हैं, हम किन लोगों के साथ रहते हैं, हम क्या क्या हैबिट्स फॉलो करते हैं, where we are not looking for the validation, we are doing it for ourselves, and that's self motivation. The author is saying that I myself lived this life where I wanted people's approval, कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो मैं इतना अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ, and I tend to like do such things so that I get people's validation and approval. And फिर कहते हैं कि then I apply this stoic philosophy, and then it says that it's all about what you think about yourself, and at the end of the day you will spend the most time with the voice in your head, and that's why it's important to like yourself. एवरी नाइट, आई मीन आई थिंक काफी लोग बैठते होंगे अपने साथ जब सोने से पहले, कुछ लोग जर्नलिंग करते होंगे, कुछ लोग साइलेंस में बैठते होंगे, कुछ प्राणायाम करते होंगे. मीन्स वेन एवर यू गेट टाइम बिफोर यू स्लीप, take 5 minutes, just 5 minutes after completing all your responsibilities, kitchen, बच्चे, family, सब कुछ करने के बाद, just sit 5 minutes with yourself. Then whatever is going in your head, that's you, real you, है ना? आपने कई चीजें पूरा दिन में, morning till night, whatever you have done, at the end of the night when you are doing journaling or you are spending time with yourself, then you are thinking what's going in your mind, and that is actually real you. When you are alone, when you are your own witness, जब आप खुद से देख रहे हो खुद को और खुद से ही बात कर रहे हो, that time you become your own witness, तब हमें पता लगता है कि अंदर क्या चल रहा है. We are the best judge of ourselves. Only we know कि हमारे मन में क्या है. I can pretend to be the the best person in the life, to be more humble, लेकिन actually में मैं क्या हूँ, मैं कितना गुस्सा करता हूँ, मैं कितना आर्ग्यूमेंट करता हूँ, only I know. I may pretend in front of all of you, देखो मैं कितना humble हूँ, मैं कितना kind हूँ, मैं कितना soft spoken हूँ, मैं कितना intelligent हूँ. But in reality, who I am in actually, only I know, because I'm the witness of my own self. मेरे अलावा तो मुझे कोई और अच्छे से नहीं जान सकता ना, not even my parents in few things. So जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, and when you are becoming the witness of your own self, then check it with yourself, are you on the right path, or you know that you are going to the wrong path, then take yourself back. So इन्होंने कुछ क्वेश्चन बोले, I'll ask you to do this self realization right now. पहला क्वेश्चन है that do you enjoy time alone. ये रोमित सर के लिए नहीं है, बाकी सब बताइए. So do you enjoy your time alone. क्या आप कभी एक मूवी देखने जाइए अकेले अपनी लाइफ में? कि यस प्रमिला जी, बोल प्रमिला जी कैमरा ऑन करिए, कुछ बोलिए यार, आप तो इतने शांत हो, आप हमेशा इतने इंटरेक्टिव रहते हो. या श्वेता जी कभी मूवी देखने गए हो अकेले? कोई हस्बैंड वाइफ, कोई बच्चा, कोई कुछ नहीं, मैं अकेले जा रही हूँ आज मूवी देखने, अकेले देखेंगे आज. नो? यस? यस प्रमिला जी, आप में से कोई गया अकेले मूवी देखने कभी? रोमित सर आपको तो हमने एक्सेप्शनल केसेस में रखा है भी, है ना? Okay, so here the, yes Akashi, you are saying something.
काफी बार ऐसा हुआ है कि बोरिंग लगता है, पर अकेले देखने में भी मजा आता है। पर हाँ जी, मैं आज तक कभी नहीं गया था ऑनेस्टली। मैं रिसेंटली धुरंधर वो 4 घंटे की मूवी में अकेला देख कर आया, और फिर लगा कि यार अगर कोई होता भी तब भी मैं मूवी ही देख रहा होता। अगर 10 लोगों को लेकर जाता तब भी मैं मूवी देख रहा होता, अकेला आया हूँ तब भी मूवी देख रहा हूँ। हाँ, जब वो इंटरवल होता है उस टाइम लगता है यार अभी कोई नहीं। बट यस, ही सेइंग दैट डू यू एंजॉय मीन है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पेंडिंग टाइम अलोन। यस, किसी ने हैंड रेस करा। यस प्लीज, आई मिस्ड इट। Kamal sir, I always prefer to be alone. क्या बात है। सोलो ड्राइविंग, सोलो मूवी देखना और पहाड़ों पर अकेले घूमने ही मजा है। साथ ही रहने से क्या है, यू लूज वी आई थिंक आई लूज माय फ्रीडम। वो बोलेगा इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना है। इवन वी हैव अप्लाइड दिस रूल इन आवर लाइफ आल्सो। अच्छा, मतलब आपकी पार्टनर कहते कि यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना है। नॉट पार्टनर बट अब जैसे मान ठीक है ना लीजिए फिर। आप मेरे दोस्त हैं तो आप भी बोलेंगे कि इधर नहीं जाना, उधर नहीं भाई जाना। सर, मैं क्या बोलूंगा सर। सच्चाई सामने आ गई, एक्चुअली सर ने बोला तो। ह्यूमन नेचर। नो, आई एम अगर सर आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव फुल फ्रीडम फ्रॉम माय वाइफ, पार्टनर। तो कौन मना कर रही है सर फिर आपका, से वहां नहीं जाना और यहाँ नहीं जाना? जब पार्टनर मना नहीं कर रही है तो कौन ऐसा है जो आपको मना कर रहा है कि सर यहाँ नहीं जाना और वहां नहीं जाना है? आपकी फ्रीडम पर किसने सर कंट्रोल कर लिया? शेर सिंह जी की वाइफ को सुनाओ ये रिकॉर्डिंग। सॉरी सर, बट just genuinely asking you, मतलब if your partner is so kind with you, so cooperative with you, then who is that person who is holding your freedom? सर अब फंस गए, अगर अब फंस गए। if we have any person who is our friendship, so he will always impose his feelings on us. Okay, चलो So कोई नहीं सर। Actually, what I understand, he want to say that जब हम ग्रुप में रहते हैं तो हम अपनी चॉइस से नहीं जा सकते। वी हैव टू फॉलो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। यहाँ जाना है तो हम वहीं जाएंगे। अगर हम फ्रेंड्स के साथ भी Okay, जाते हैं correct. किसी Yes, टूरिस्ट स्पॉट with पे, group, yes, with group it's tough. या लेकिन when you are living in family and you are saying अभी मैं जा रहा हूँ देहरादून घूमने, and then somebody is holding your freedom, तो फिर वो समझ जाते हैं ना लोग कि वाइफ ने मना किया होगा, बच्चों ने मना कर दिया होगा, क्योंकि ग्रुप तो है नहीं अभी कोई। चलिए, jokes apart, the thing is it's not just about spending time alone, it's about are you enjoying spending time alone? That's important. अगर मैं अपनी खुद की कंपनी अकेले एंजॉय नहीं कर रहा हूँ तो फिर लोग मेरी कंपनी को एंजॉय करेंगे। When I'm not liking myself, then how I can expect the people will like myself? And it's not about just that people should like me, it's about how I'm liking myself. Am I loving myself enough? और आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार मैं तो खुद से प्यार नहीं करता हूँ बट यस आई वांट कि पीपल शुड लव मी। No, you can't expect that until and unless you'll not love yourself. So this is the most important thing. कि do you enjoy? The main highlighted word is here enjoy. I would say that do you enjoy your alone time? You can ask yourself अभी सब। Sorry Sir, अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया तो। Okay. I like being alone and I never feel lonely when I'm alone. Wonderful, amazing. So there's a difference between alone and lonely. दोनों में फर्क है ना? शेर सिंह सर कुछ कहना चाहते हैं? ये कमल सर जो अमित जी ने कहा, it happens with every practitioner, meditation practitioner. Those who practice बिल्कुल। meditation, they always enjoy their own company and they सर accept वो तो बिल्कुल अलग ही स्टेट है वो, मतलब हाँ, मतलब मैं उसमें कहूंगा उसमें तो मुझे लोग चाहिए, मतलब लेने भी नहीं चाहिए व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, बिकॉज दैट इज योर समथिंग वेरी पर्सनल थिंग। अभी हमने विपासना का नाम सुना है ना, विपासना शायद कई लोगों ने किया भी होगा विपासना क्रिया। तो मेरे जो गुरुजी हैं, जो मेरे योगा के गुरुजी थे, उन्होंने बोला कि कभी भी विपासना जाओ किसी को लेकर मत जाओ। दो आपको वहां पे 10 days तक शांत रहना है, किसी से बात नहीं करनी है ना, आई कांटेक्ट भी नहीं करना है, बट स्टिल डोंट टेक एनी ऑफ योर फ्रेंड with you there. Why? Because even if you're not talking, but still in your mind that person is there, okay, he is also there or she is also there. अभी वो क्या कर रही होगी, मेरे को कैसा एक्सपीरियंस है, उसको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं अगेन इन दैट टाइम ऑल्सो यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इन साइड. So definitely when such things about the yoga practice or the meditation or such things, alone is something I would say solitude, that gives you solitude. And
that's a different zone. But in general, in real life, जहाँ not every person is a practitioner, not everyone is doing the meditation, but in real life where people are struggling with day-to-day things, where you are enjoying your time alone or not, that's important. कि आप खुद के साथ हैं, अभी नहीं भी कोई देख रहा, I'm enjoying my time. That's important thing. Second question the author is saying here is, do you always think about others? Again, that same thing which I was saying about the Vipassana, कि you always think about others कि दूसरे क्या कर रहे होंगे. अच्छा अभी सोशल मीडिया खोला, अरे यार ये तो यहाँ घूमने गई है मेरी फ्रेंड और इसने तो ऐसी साड़ी पहनी है. अच्छा ये क्या कर रही है और वो क्या कर रहा है ना. हम दूसरे क्या कर रहे हैं. Do you feel this कि मेरा ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में जाता है, that I am thinking most of the time what others are doing instead of what I am doing. Hello Sanjana ji, namaste, a very good morning. नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग. माझ्या तुझ्यावर भरपूर प्रेम आहे मॅम. माझं पण तुझ्यात खूप प्रेम आहे. बहुत बढ़िया. कैमरा ऑन कर दो. हाँ जी शेर सिंह सर कुछ कहना चाह रहे हैं. सर मैं ये बोल रहा था कि आई ऑल्सो लाइक रेफर्स पीपल लाइफ कि हाउ दे आर लाइक डूइंग टू सीक मोटिवेशन और लाइक टू सीक गाइडेंस कि लोग किस तरह से अपने लाइफ में मतलब डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, एंड हाउ दे हैव रीच्ड, एंड इफ वी वांट टू गो देन वी कैन लाइक mark okay, this may be the point where I can go. Stoic philosophy is saying the same thing sir. बिल्कुल आप बिल्कुल सही राह पर हैं कि डेफिनेटली हम सब बाहर देखते हैं कि व्हाट अदर्स आर डूइंग, बट इफ वी आर गेटिंग जेलस और एनवियस after watching their success, we are not at the correct part. But yes, when we are taking inspiration or motivation from those people, how they are doing it, and yes, I can also do like that, then you are doing good. Means definitely watching others is not bad, but watching others and becoming jealous or envious is bad. But when you are watching others, like अभी मैं dishes, जैसे मैं वही शोबाजी के लिए से डालता हूँ ऐसे फोटो फोटो बढ़िया सी खींच के, तो अभी लोगों को लगता है अभी तुमने शोबाजी कर रहा है अपनी, है ना, अच्छी अच्छी फोटोज डाल रहा है और जेलस कर रहा है. बट द थिंग इज मे बी शायद बहुत सारे लोग देखते हैं ना फोटोज, शायद एक व्यक्ति को लगे नहीं यार अभी ही इज कुकिंग हेल्दी समथिंग, है ना, तो वी शुड ऑल्सो क्रिएट समथिंग हेल्दी एंड देयर इज ऑप्शन. So I have a group called Nourish with Love where every weekend we choose an ingredient and we make a healthy dish. तो वहाँ पर हम सब लोग फोटो डालते हैं. मैं ऑलवेज हमेशा यही कहता हूँ कि इट्स मोर अबाउट द पार्टिसिपेशन नॉट द परफेक्शन. आपको ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी फोटो क्लिक करके ही डालनी है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है और आपको शो अप करना है कि हाँ देखो आई एम डूइंग इट, एंड दैट्स एक्चुअली वर्क्स. दैट्स द रियलिटी. इट्स नॉट अबाउट कि यू जस्ट नीड टू शो ऑफ. It's about you're consistent and you're following the right path. So here the third question comes, do you think how you get ahead in your life? Do you think कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है? The author is saying, I'm not saying this. There are three questions the author has given. First, do you enjoy your company alone? Second, not just motivation to cook. Okay. The fact that a male can also cook consistently and one doesn't need to be chef for that. हाँ बिल्कुल अमी जी. And I, मेल फीमेल I वाली चीज नहीं है. actually mean that as a compliment for you. Thank you. So ma'am. it wasn't just meant to be said, you know. Many a Yeah. times people say कि दुनिया में आधे से ज्यादा जो शेफ्स है वो मेल्स हैं, but वो उनका काम है, उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया है. But जी जी. even a regular individual can, you know, consistently cook. That is what I meant. A pure compliment for you. Thank you ma'am. Thank you so much and accepting it with so much of gratitude. And I would say it's not just about male or female. Any art, any skill, anything, anyone can develop any skill. So it's not just a skill. I just love. I mean, ऐसे मेरे को वो नहीं है कि मेरे को बनाना है. I just see कोई रील देखी, अच्छा ये अच्छा लग रहा है, let's try this, and just it happens good. And trust me, मैं अपने हाथ की कोई भी चीज बनाता हूँ, I loved it. मैं उंगलियां चाट जाता हूँ अपनी. And so I accepting this thing. मैं मतलब whatever I'm cooking, I'm loving it. तो आगे बढ़ते हैं. What the author is saying here in chapter 50, which is saying the on being your own witness. When you are thinking about only to please others, you are risking your own life. अगर मैं सिर्फ इसलिए फोटो डालूं कि लोग मेरी फोटो को लाइक करें या लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दें, तो आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग. बट यस, आई एम नॉट डूइंग जस्ट फॉर दैट अप्रूवल और वैलिडेशन और प्रेजेंस. आई एम डूइंग इट बिकॉज आई एम लविंग इट. वेरी सिंपल. और आपकी लाइफ में भी आपको
वो चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं, जो चीजें आपको करना अच्छा लगता है, जिन चीजों में आप पैशनेट होकर वो चीजें करते हो, then do it for yourself. Definitely people will praise you when you are doing something by heart. And वो कहते हैं ना कि प्रशंसा और अपमान दोनों में अपने आप को समस्थिति में रखना, दैट्स कॉल्ड योगा. समत्वम योगा उच्यते. चाहे दुख हो, सुख हो, कोई प्रेस करे, कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, हर स्थिति में एक संभाव की स्थिति रखना, दैट्स कॉल्ड योग. So when you are thinking about only to please others, you are risking your life. And when you do this, you lose your own character. अगर मैं सिर्फ इसलिए बनाना स्टार्ट करूं कि यार लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, चलो और अच्छा मतलब आई कैन गेट द इंस्पिरेशन, बट जस्ट टू गेट मोर वैलिडेशन और मोर प्रेस, अगर मैं फिर से चीजें ये सोच कर बनाऊंगा तो शायद वो मैं प्यार या वो पैशन उसमें नहीं डाल पाऊंगा. सो हियर द ऑथर इज सेइंग you compromise your integrity when you seek outside approval. So be satisfied with your own principles. And it applies in your career as well. Because we are living in very high cutthroat competition time, and so many people wants, definitely we all wants to grow and becoming the best version, getting the best job, best business, more clients, everything we all want, right? But not compromising with your integrity, not compromising with your character, then only you are the right person. Success mile na mile, that's other thing, but do not compromise with your integrity and your character. Just a second. शेर सिंह सर भी एक सेल्फी और लेंगे, संजना मैम बाद में, ये काफी लोग बाद में भी आए ना. Okay, I'll not take much time, थोड़ा जल्दी करते हैं इसको भी. So here the author is saying that be your own witness if you need one. You don't need any more witness than that. तो हमें ये नहीं है कि मेरे को भी लोग ही चाहिए, whatever I am doing. एक और एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं रिलेट कर पाता हूँ उस चीज से. अभी on 13th of March I decided कि I'll make 100 reels on health, fitness, wellness के ऊपर, because from 13 March till 21st of June International Day of Yoga 100 days का एक टाइम था. तो ऐसे आई डिसाइडेड, नॉट इट वाज नॉट इन माय माइंड कि मेरे को 1000 फॉलोअर्स करने हैं या लोग मेरी वीडियोस को लाइक करें. आई जस्ट स्टार्टेड इट. और आज भी मतलब आई एम डूइंग. तो सम टाइम पीपल से यार तुम्हारी वीडियो अच्छी है, ठीक है, अरे तुम्हारी वीडियो मतलब ये अच्छा है और वो अच्छा है, बट स्टिल आई एम नॉट डूइंग फॉर दैट अप्रूवल. आई हैड डिसाइडेड दैट आई विल डू दिस एंड आई डू इट, आई एम डूइंग इट होल हार्टेडली. सो समटाइम्स हमें अपना विटनेस खुद बनना है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ. अगर मैं अपनी नजरों में सही हूँ तो मुझे शायद किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है. लेकिन इफ आई एम डूइंग समथिंग इन माय लाइफ related to my career, related to any area of my life, just for getting the approval or validation from others, then I'm risking my life and I'm compromising with my own character and integrity, and that should not happen. So he's saying that as a kid we always conditioned to have good grades, so society, teachers, friends, family, everyone praise us, है ना. बच्चों कहते हैं ना तुम 100% मार्क्स लाओ, 98% लाओ, 97%. अच्छे मार्क्स लाओगे तो टीचर भी प्रेस करता है, बड़ा तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा है, ही इज गेटिंग गुड मार्क्स. दोस्त भी प्रेस करते हैं, फैमिली भी प्रेस करती है. बट ये हमारी कंडीशनिंग बन जाती है बचपन से ही. एंड द ऑथर इज सेइंग कि द सैड थिंग इज दैट दिस कंडीशनिंग रिमेन अलाइव इवन व्हेन वी बिकम अडल्ट्स. सो अगर बचपन में we have gone through with this conditioning कि अच्छे मार्क्स लाओगे तो you are a good person, और अगर कम मार्क्स आए तो you are not good. अगर हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई है तो ट्रस्ट मी, मतलब द ऑथर इज सेइंग कि आज भी हमारी लाइफ के अंदर उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखता है कि इफ आई एम नॉट डूइंग गुड इन माई करियर, आई एम नॉट डूइंग गुड, आई एम नॉट अ गुड पर्सन. If I'm not doing good in my business, I'm not a good businessman, because that has been conditioned in my childhood as a kid. So if that has happened, you need to break that pattern. You need to break that thing, that rewiring your conditioning कि ऐसा नहीं है. Even if I'm getting little less marks, but I have given my 100%, then I'm fine with that. Even if I'm not getting the first position in my business, or I'm not at the top of my career, I'm not the top of my game, that's also enough. तो वहीं पे बात आती है जो स्टार्टिंग में रोहित जी ने बोली थी, एक्सेप्टेंस वाली. वी नीड टू एक्सेप्ट दैट एंड वी नीड टू विटनेस आवरसेल्फ
कि हम अपने विटनेस खुद हैं, अपनी नजरों में वी आर द बेस्ट. इफ आई एम सेइंग कि आज ये जो व्हाट आई एम डूइंग, योगा कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, आई एम गिविंग माई बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. आई एम गिविंग माई बेस्ट इफ आई एम सेइंग, एंड आई एम विटनेसिंग माई सेल्फ कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, देन आई डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स. और अगर मेरी कंडीशनिंग ऐसी है कि नहीं नहीं कमल तुम अच्छा तभी करोगे जब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तो शायद मैं लोगों की वैलिडेशन के लिए काम करता रहूंगा और यही मेरी कंडीशनिंग बनी रहेगी, और शायद इससे मेरी लाइफ और बदतर हो जाए. सो बेटर है कि अंडरस्टैंड योर कंडीशनिंग. आर यू डूइंग सच थिंग्स इन योर लाइफ, स्पेशली इन योर करियर, जस्ट टू गेट द वैलिडेशन एंड प्रेज फ्रॉम द अदर्स, or you are giving your best and you are not thinking much about what people are saying about your work. But yes, be ethical and सही काम करना है, that's important. आगे बढ़ते हैं. तो he's saying that in our life we feel everything is about approval. Partner intimacy means अगर पार्टनर खुश है आफ्टर इंटीमेशन, दैट्स एन अप्रूवल. ऑफिस के अंदर अगर बॉस और कोवर्कर हैप्पी है हमारे काम से, दैट्स एन अप्रूवल. बिजनेस के अंदर अगर ज्यादा कस्टमर है, दैट्स एन अप्रूवल. So it should never be the primary reason of your doing whatever you are doing in your life. ठीक है. तो इसके बदले में क्या होना चाहिए? Yes, even kids approval. So there are different multiple areas in our life where we feel कि if this is happening, we are doing good, and that means that's the approval, domestic help approval. अरे हाँ, अपने पैसे बढ़ा देंगे तो आप अच्छी हैं, और अगर पैसे कम दे रहे हो तो ये बकवास है, ये तो ऑनर. यस. सो अप्रूवल वाली चीज लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे कैरेक्टर्स में आप देखते हैं. एंड बिकॉज माई ब्रदर्स एन एक्टर, तो वो कहते हैं हम ना इंसानों को पढ़ते हैं, हम बुक से ज्यादा इंसानों को देखते हैं, और जब हम एक्टिंग में जाते हैं, जब हम थिएटर में अपना प्ले करने जाते हैं, तो शायद हमें कोई लाइफ के अंदर, रियल लाइफ के अंदर ऐसा करेक्टर दिखता है जिसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं. फिल्मों में भी तो ये होता है. यस अमी जी, यू वांट टू से समथिंग? Yeah, when it's this question of approval, I'd just like to add that there is this entire generation. I think शेर सिंह जी और बाकी लोग मुझसे सहमत हो पाएंगे, जहाँ हम लोग है ना, हमारे पेरेंट्स का अप्रूवल आफ्टर अ सर्टेन एज भी सीख करते हैं. And sometimes they might not be here also with us. They might have passed away, and yet हम दिमाग में ऐसा रखेंगे, अरे पापा होते तो क्या बोलते, अरे मम्मी होती तो क्या बोलती. You know that kind of अभी भी नजर का एक अप्रूवल होता है. No matter what age I have reached, I will still look at my mother. My mother must have moved on. Okay, she might not be in that, but there is this Correct. entire generation which still seeks this kind of approval, which is, you know, which is a very burning thing. That is what I feel. Wonderful. Yes अमी जी, डेफिनेटली. मतलब वी आर इन दैट एज. आई थिंक मेरा जो एज ग्रुप है वो भी शायद उसी एज ग्रुप में आता है, वेयर वी आर सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम आवर पेरेंट्स. शायद पापा अगर होंगे या मम्मी होंगी, बट अगेन we know that this is a conditioning, right? If we are wise enough, we know that this is a conditioning, and if the things are going good, means definitely we are doing a ethical work. and अगर शायद कुछ गलती हो रही है और शायद हमारे पेरेंट्स होते, तो बिकॉज नो पेरेंट्स वांट्स कि उनका बच्चा कुछ गलत करे या गलत संगत में जाए या गलत चीजों में फंसे. तो अगर हमें खुद से, बिकॉज वी आर ऑल्सो वाइज इनफ कि हमें पता होता है कि ये सही है या गलत है, बिकॉज आर इंटेंट टेल अस दैट यू आर डूइंग करेक्ट और नॉट. सो इफ during that time you feel that okay, अगर शायद मेरे पेरेंट्स होते या पेरेंट्स हैं, and whatever they will approve, तो should I go with that thing or should I do the right thing? There's a difference. Should I do the right thing or should I do what is the people are approving me? तो श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध लड़ने जाता है, तो वही दुविधा में होता है ना. सबसे पहला चैप्टर तो वही है ना, अर्जुन विषाद योग, कि अभी मैं अपने भाइयों को मारूं, अपने गुरुओं को मारूं, ये गलत होगा, लेकिन अगर मैं क्षत्रिय और मैं नहीं लड़ूंगा तो ये भी गलत होगा. तो आपको देखना है कि आपका रोल क्या है. वो इसको रिलेट करते हैं प्रीवियस चैप्टर से, कि वट एवर द रोल हैज बीन असाइन्ड टू यू, डू इट वेरी स्किलफुली. डेफिनेटली पीपल will tell you, they will give their opinions, maybe your parents, your partner, your kids, your bosses, but at the end you are the actor. You know what's the best you can give. Just focus on that thing. Sometime few of my students tell me, sir ये ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं. So this is my choice की, because I know कि what I'm doing, okay, this I can mold or this I can't, because I know this has to be done like this only.
because I am the actor and I know my skills, and according to my skills I know this is the right thing, this is the right way to do this thing. So definitely we should listen what the society is saying, what the people are saying, but at the end your work, your decision is your responsibility, how you are doing those things. आप सुनिए सबकी, करिए मन की भी कब, जब एथिकल हो और सही तरीके से आपको पता हो कि यही करना है। अब आप दूसरों की सुन के करोगे, बाद में रिग्रेट करोगे यार मैंने उसकी सुनी थी। बट डेफिनेटली इफ समबडी इज सजेस्टिंग यू द राइट पाथ एंड यू नो कि शायद मेरे को कंफ्यूजन है एंड दिस कुड बी द राइट पाथ, देन यू कैन चूज। बट मोस्ट ऑफ द टाइम योर इंटेंट विल टेल यू कि दिस इज राइट और रॉन्ग। सो वेदर देयर इज अ विटनेस और नॉट, वी शुड स्टिल डू व्हाट वी डू। अगर मुझे कोई नहीं भी देख रहा, चाहे कोई देख रहा है, मुझे कोई अप्रूव कर रहा है नहीं कर रहा है, बट जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ तो मुझे वो करते रहना चाहिए। आई शुड नॉट गेट पीपल टू वैलिडेट मी और अप्रूव मी कि आप ये सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मुझे पता है सही कर रहा हूँ और वो करते रहिए। लाइफ के अंदर आप बुक्स पढ़ रहे हो, पढ़ते रहिए, एक्सरसाइज कर रहे हो, करते रहिए, अच्छी चीजें करते रहिए। लोग आपको अप्रिशिएट करें या ना करें, विटनेस हो कोई ना हो, अकेले में करें तो बहुत बढ़िया है, और अगर दुनिया को भी आप दिखा रहे हैं तो somehow you are inspiring people। अगेन वही वाली चीज आती है कि जेलसी नहीं, इंस्पायरिंग वाली चीज है ना। बिकॉज अगर हम कोई भी चीज करते हैं लाइफ के अंदर, हमें खुद ही अपने विटनेस हैं और हम सही चीज कर रहे हैं तो वो चीज अच्छी ही होगी, बिकॉज हमें पता है कि दिस इज द राइट थिंग एंड पीपल आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग। तो somehow even when they are not appreciating, but still our intent is saying it's good and fine, keep doing it। yes Rumit sir। हाँ, मैं जस्ट बोलना चाह रहा था जी पहले, सर। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ना हाँ कि जी। यू शुड डू व्हाट यू लाइक एंड ऑल, तो जैसे बात हुआ था कि मेरे बॉस ने बोला था कि ये सब बंद कर दो जो मैं करता था, स्टंट्स एंड ऑल, डांस एंड एवरीथिंग। तो अभी रिसेंटली वी वेंट टू हनोई वियतनाम, वहाँ भी सब लोग ऑफिस के हाथ खींच के ले जा रहे थे, वो म्यूजिक बज रहा था, डीजे एंड ऑल, बट आई वाज नॉट डूइंग इट। आई सेड नहीं नहीं। तो देन माय बॉस अंडरस्टूड, ही सेड कि अरे तुम करो डांस वांस बट डोंट टेक रिस्क। मेरा कहने का मतलब ये था कि रिस्क मत लो, बिकॉज नाउ यू आर ऑल इंडिया हेड, हमारे तो इम्पोर्टेंट बंदे हो, कुछ इंजरी विंजरी हो जाए तो ट्रैवलिंग इज मस्ट फॉर अस, तो काम हमारा सफर हो जाएगा। सो दैट इज द थिंग। एंड दूसरा क्या है कि काफी कस्टमर भी बोलते हैं अरे तो आप इतने बड़े पोजीशन पे आप ये सब डांस वांस करते हो तो कोई बोलता नहीं है कुछ ये हो। तो हमने बोला आई डोंट केयर व्हाट पीपल से, हमको जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो दिस और दूसरा जो सोलो ट्रैवलिंग का था वो, उसमें क्या है कि अगर आप सोलो नहीं है तो एक प्रॉब्लम ये है कि यू कैन नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स। अगर आप सोलो हो तो एडवांटेज है कि यू कैन डेवलप योर नेटवर्क एंड एवरी टाइम यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स। बाकी तो रिकॉर्डिंग ऑन है और thank you Sumit sir। थैंक यू। And this is a wonderful example because we all know Rumit sir is a rock star, the way he dance with full of his passion and energy, और दिल से करते हैं वो, है ना, वो दिखता है, वो दिख जाता है, पता लग जाता है यार कि दिल से इंसान कर रहा है या सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है, तो ही इज डूइंग दिल से। लेकिन एज अ बॉस उनको लगा कि नहीं यार ये दिस इज नॉट गुड, नॉट दिस इज लाइक डांस करना इज नॉट गुड, लाइक रिस्क लेना इज नॉट गुड, because he is in a position in his company where he needs to travel a lot and if somehow he get injured तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन यस, हमेशा अपने दिल के बच्चे को जिंदा रखिए, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ इतना बढ़ जाता है कि हम जीना छोड़ देते हैं। हम जी तो रहे होते हैं लेकिन जीना छोड़ देते हैं। तो ऑलवेज कीप द किड्स इनसाइड यू अलाइव and do the things which your inner child wants to do, but definitely not risking your life. So here the author is saying whether there is a witness or not, we should do still what we do and never do anything in life when you want to impress or please others and other days you are doing nothing. तो for example कि जब मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जहाँ पे लोग मुझे देख रहे हैं तब तो मैं वो काम कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन माई ऑफिस, बॉस भी देख रहे हैं, मेरे कलीग्स भी दिख रहे हैं, तब तो आई एम डूइंग माई बेस्ट। लेकिन जब उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम करना है, अरे छोड़ना बाद में करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। Either when people are watching you or people are not watching you, continue that same thing with that same intention, with that same passion, that's real you। अगर आप सिर्फ तब वो काम कर रहे हो जब लोग आपको देख रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, आप लोगों को इम्प्रेस कर रहे हो, तब तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। लेकिन जब कोई नहीं देख रहा, उसके बाद आप नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट रियल यू।
बट स्टिल इफ यू आर डूइंग दैट थिंग सेम इंटेंशन सेम पैशन, अगर मैं कितनी फोटोज मैंने डाली भी नहीं है ना अमी जी, when no one is watching God is still watching, yes, and मतलब we are God, है ना, हम सबके अंदर भी ईश्वर तत्व है, we all have that divinity inside us, we are the God, so हमें अपना खुद का विटनेस बनना है। तो योग के अंदर भी तो ये कहते हैं ना, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, जब हम खुद के दृष्टा बन जाते हैं तब हम लाइफ समझ पाते हैं। तो ही इज सेइंग द सेम थिंग कि कभी भी वो चीज जो आप इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो, चाहे चाहे लोग आपको वैलिडेट करें, उस टाइम तो आप अच्छे से कर रहे हो, लेकिन व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू तब भी आप उसी पैशन से कर रहे हो, दैट्स रियल यू। लेकिन जब आप नहीं करे, अरे अब तो कोई भी नहीं देख रहा, खा लेता हूँ मैं मीठा, दुनिया के सामने तो मैं बोलता हूँ मैं मीठा नहीं खाता, मैं जंक फूड नहीं खाता, मैं तो बहुत हेल्दी खाना खाता हूँ, लेकिन मैं डोमिनोज में पाया जाता हूँ, मैकडीज में पाया जाता हूँ, तो दैट्स नॉट रियल यू। If you are doing whatever you are showing to the people when people are praising you, and still you are doing the same thing when nobody is watching you, that's the real you. It's like waiting at the signal. Yes, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो हमें बहुत ऑथेंटिक रहना है, चाहे लोग देखे ना देखे, प्रेस करे ना करे। अभी रोमित सर अगर फोटो नहीं भी डाले फिर भी वो डांस करे तो अमेजिंग, है ना। अगर मैं फिर भी सेम पैशन के साथ हेल्दी फूड बना रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, तो दैट्स द रियल मी। अगर मैं सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ, दैट्स नॉट रियल। सो आई थिंक व्हेन यू आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड यू नेवर परफॉर्म एट योर बेस्ट। जैसे रोमित सर हैं अभी, जैसे उन्होंने बोला कि जब हम सोलो होते हैं तो हम अपना बेस्ट दे पाते हैं और अच्छे लोगों से और मिल पाते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट अच्छा होता है, एंड दैट वे वी कनेक्ट विद मोर पीपल विद ऑथेंटिसिटी, इंटेग्रिटी। लेकिन अगर आप फेक हो तो फेकनेस ज्यादा टाइम तक नहीं चलती है, तो अपने विटनेस खुद बनिए। एंड लास्टली हियर द ऑथर इज सेइंग व्हाट यू डू व्हेन नो वन इज वाचिंग। एक मिनट, शायद कोई मैसेज आया था, किसी ने किया था लास्ट में, आंचल जी, बीइंग हीरोइक in your own eyes by choosing what is right and doing what we have to do for ourselves। जी हम तो अपनी मूवी के खुद ही हीरो हैं, है ना जी, और वो हीरो बने रहना चाहिए। अपनी मूवी के हीरो है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डायरेक्टर ने दी है, आपको अपना रोल बड़े शिद्दत के साथ निभाना है। सो द ऑथर इज सेइंग कि व्हाट यू डू व्हेन नो वन इज वाचिंग, योर ओन एक्शन ड्यूरिंग दोज मोमेंट डिफाइंस यू। मतलब आप रियल में क्या हो ना, अगर आपको खुद को जानना हो कि आप रियल में क्या हो, तो आप ये देखिए जो आप दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब आप अकेले में कर रहे हैं, क्या आप उसी पैशन से कर पा रहे हैं, उसी अथॉरिटी से, उसी इंटीग्रिटी से कर पा रहे हैं? इफ यस, देन दैट्स रियल यू, that defines actually you. When you are giving your best, when no one is watching, you know that you are the only witness you need. Still you are giving your best when no one is watching, then you are the own witness. आप अपने विटनेस खुद है, नहीं देख रहा कोई, मैं तो देख रहा हूँ ना मैं क्या कर रहा हूँ। And that's important thing, and that's the epitome of self motivation. So example यहाँ पे दिया है कि do you work because it matters or do you work because you love it? Same. I cook that food, जो भी मैं अनहेल्दी भी खाता हूँ, ऐसा नहीं, honestly telling you, मैं कई बार जंक भी खा लेता हूँ, लेकिन मतलब मैं कुक इसलिए करता हूँ बिकॉज आई एम लविंग इट। आप कोई भी लाइफ के अंदर जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ आपको एक अपनी लाइफ चलानी है, या दैट वर्क एक्चुअली मैटर्स टू यू, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो डू यू प्रैक्टिस योगा और कोई भी एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि आपको दिखाना है कि देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, या सच में आप हेल्दी रहना चाहते हैं? आप बुक्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको शो ऑफ करना, देखो मैं बुक्स पढ़ता हूँ, या सच में आप कुछ उस बुक से सीख रहे हैं, है ना? सो डू यू थिंक अबाउट योर पार्टनर या यू एक्चुअली केयर अबाउट योर पार्टनर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 50। तो लास्ट में मैं यहाँ पे एक और लाइन बोलना चाहूंगा जो मैंने बहुत टाइम पहले सुनी थी, कि पहले मेरी ख्वाहिश थी कि हर कोई जाने मुझे। जी शेर सिंह जी, कि पहले मेरी ख्वाहिश थी कि हर कोई जाने मुझे, लेकिन जब से खुद को जाना है तो मन करता है कि गुमनाम रहूं। थैंक यू। सो या दिस इज इट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 50, और the crux of this chapter is being your own witness and do the things with that same passion. Clap for yourself, applause for yourself, be your own witness even when nobody is watching you. And if you are doing the things just for the validation, approval or praises, then you are compromising with your integrity, and you should not do that. So thank you so much,
we have done these two chapters, chapter number 49 and 50, and I hope you enjoyed this Sunday session. So Sher Singh sir, if you want, you can take one more selfie. Everyone, please turn your camera on एक बार और. अब तो सर धूप आ गई काफी. हाँ, धूप आ गई. You can see here. Yes. Good morning, everyone. थैंक यू संजय जी. अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गजल की पलके सवार लूं. क्या बात है. Yes. Good morning. Yes. रोमित सर, कैमरा ऑन. थैंक Ready. यू. Sanjay sir, ready. Not taken. अरे हमको लगा सेल्फी हो गया है इसलिए। सर एक और ले रहे हैं सर, संजना मैम बाद में आई थी Ready. और भी लागे. नहीं मैं अभी का बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं हुई सर. अच्छा ये जो आप कमल जी वीडियो बनाते हैं ना, मैं देखा कि उसमें प्रिया जी, श्वेता जी, पलक जी बोल रहे अरे दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा, ये हो रहा है। तो एक्टिंग कर रहे हैं सर. वो मैंने बोला ना रोल दिया है. अच्छा मेरे को रोल अच्छा वाला दिया, बट अभी ये सब पेन वाला और दर्द वाला रोल आपने सबको दे के रखा है. नहीं सर, आपका तो नंबर भी आएगा, अभी- डोंट वरी. संजना जी को मैंने लपेट लिया था एक बार, तो 2-3 बार लपेटा इनको भी. हाँ तो मैं बोला ये सब लोगों से आप क्या क्या करवाते हैं? हाँ, कई बार तो कई लोग सर ऐसे होते हैं, भाई मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो क्योंकि हुई नहीं ऐसी. मैंने कहा आई नो आप ऐसे नहीं हो, ये आपको मैं रोल दे रहा हूँ बस करने के लिए, तो अपने रोल को बड़ी शिद्दत के साथ निभाइए. हाँ किरदार निभाना है. दैट्स इट, किरदार निभाइए अपना, है ना. चलिए जी, अभी फ्लोर इज ओपन. कोई कुछ शेयर करना चाहता है, किसी का कोई प्रश्न हो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर. सर लास्टली आई वांट टू शेयर कि मैं जब भी whenever I think I lose my self awareness and I think about others, तो मैं पाता हूँ कि जितना मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ उतना ही अपने आप से दूर चला जाता हूँ, और जितना मैं अपने बारे में सोचता हूँ मैं ईश्वर के पास आ जाता हूँ, और अल्टीमेटली हमें ईश्वर के पास ही जाना है. अभी सर टाइम है, बहुत टाइम है सर अभी तो. क्या बात है टेंशन शेर सिंह जी. अरे नहीं, बहुत फिजिकल बढ़िया. जरूरी नहीं है कि फिजिकल को लीव करके हम लोग स्पिरिचुअली भी कनेक्ट हो सकते हैं ईश्वर से. बहुत बढ़िया शेर सिंह जी. बहुत बढ़िया. यस जैनब. Good morning, Kamalji. Good Good morning, morning, ji. everyone. So, there was one thing that I wanted to. It's not about ask or I don't know what I'm going to say, even if it is a statement or what, but it's just my life experience. And people over here seem really content with their life. I feel like when the topic came about solitude and being, social with people, there's always this conflicting theory that I have. Like, not I have, but people have that I try to fit myself in. हम्म. कि जब भी मैं सॉलिट्यूड में होती हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम I keep on doing things because I love it and not because others have asked me to do it. And if someone asks me to do it, I will never do it. So, and then when I step into a social setting, I feel like I need to do that because it's been so long that I have been into a social setting. And when I try to step in, after 1-2 hours, I'm so drained that I feel like all of my energy has been taken down from like by people. And then again, after 2 hours, I remind myself that why being with myself is very important. When I come home, I hardly do much. I can't work on my best. And entire day I'm little more drained and I know कि I'm dragging myself. And I don't know if this happens with everyone or if this is my ADHD effect or something. But Kamalji, I'm asking you personally, Mhm. is this something normal or common with everyone? See, I'm not seeking validation. No, I can actually relate this thing definitely because एक बार मुझे रिचा जी ने बात की थी, she is not here right now. जैसे नज़र वाली बात होती है, उन्होंने बोला कि सर आप जब फोटोज डालते हो खाने की ना, तो खाना खाने से पहले मत डालो कभी भी, क्योंकि ना जैसे आप डालते हो तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की इंटेंशन शायद अच्छी ही होती होंगी, लेकिन कई बार क्या होता है ना, नज़र वाली चीज़ होती है, तो यू स्टार्ट ड्रेनिंग आफ्टर. वो खाना खाने के बाद भी यू फील नॉट गुड, लिटिल हैवी. तो वो चीज़ें. और सेकंड थिंग, व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ सोशल सेटिंग, व्हेन डेफिनेटली यू हैव टू शो अप, डेफिनेटली वो ड्रेनिंग वाली चीज़ आई कैन ऑल्सो रिलेट.
But at the end, if you are taking time for a pause and you're again going your own shell, working on yourself, rejuvenating yourself, because you have to live in the society, you have to live in the era where everyone is on the social media, and somehow चाहे हम वहाँ पे शेयर करें या ना करें, इन एनी हाउ वो लोगों की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं आपको ड्रेन करती है. सो अगेन इफ आई टॉक अबाउट द चैप्टर ओनली, कि बीइंग योर ओन विटनेस, वहां पे आपको खुद देखना है कि व्हेन इवन यू आर नॉट ऑन दैट सोशल मीडिया, because nobody is forcing you, nobody has forced me to cook, nobody has forced me to choose yoga, nobody has forced me to do the things, the rituals which I am doing. But अगर वो करने के बाद भी आई एम फीलिंग ड्रेनिंग, तो कहीं ना कहीं आई एम कंडीशन टू इन डूइंग दैट थिंग फॉर दोज पीपल वैलिडेशन. लेकिन अगर वो चीजें करके यू आर फीलिंग अपलिफ्टिंग, एनर्जाइज, more passionate, more enthusiastic, means you're on the right path. This is what I personally feel. तो चाहे लोग बोले या ना बोले, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, तो आपको वो एनर्जी ड्रेन नहीं होगी एंड यू विल लव डूइंग इट. और अगर एनर्जी ड्रेन हो रही है तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा है कि यार शायद किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने तो इतने अच्छे से काम किया था. और इट मे नॉट, बट वो नजर वाली चीज हो सकती है. इट कुड बी एनीथिंग, बट यस, मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग विद फुल ऑफ योर पैशन, दैट विल नेवर ड्रेन यू, दैट विल ओनली अपलिफ्ट यू, एनर्जाइज यू एंड मेक यू मोर एंथुसियास्टिक. व्हाट आई फील. थैंक यू सो मच. यस, कोई और कुछ बोलना चाहेगा? संजना जी, आकाश जी, श्वेता जी. We are, I think, over time. We can पलक कुछ wind up बोलना if चाहोगे? you हाँ have. हाँ, वी कैन वाइंड अप, हम कर सकते हैं. आप कुछ बोलना चाहेंगे? इलेक्शन कैसे चल रहे हैं? आर यू डूइंग Yes, योर रोल I इन would like to. एफिशिएंटली? गुड. आपको जो किरदार दिया गया अच्छे से निभा रहे हैं आप? I would like to remind everyone again, बिल्कुल चल रहा है सब कुछ. That मैंने जो स्टार्टिंग में भी बोला था सेशन के, मैं अभी फिर से बोलना चाहूँगी because the members are more right now. तो whenever we are discussing anything, whenever we are sharing anything, I hope I'm audible. तो हम जो भाषा चुन रहे हैं, जो हम शब्दों का चयन हम जब कर रहे हैं, वी शुड बी माइंडफुल कि आप किस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कितने पढ़ रहे हैं, आप अपने शब्दों को का सही इस्तेमाल ज़रूर करिए. बिकॉज़ मैं नहीं चाहूँगी कि मैं यूट्यूब से वो पोर्शन आपका कट शॉर्ट करना पड़े मुझे. जैसे मुझे फीडबैक्स बहुत आते हैं कि आपको पर्सनली बोलना चाहिए था, आपको ग्रुप में नहीं बोलना चाहिए था. तो ज्ञान जब आप बहुत देने के लिए हैं, आप अपने आप को सक्षम समझते हैं कि आप ज्ञान दे सकते हैं, तो आप खुद को भी सोचिए कि आप क्या शब्द बोल रहे हैं इस कम्युनिटी में ड्यूरिंग द सेशंस स्पेशली. और दिस आई रिमाइंड अगेन एंड अगेन, नॉट पर्सनली बट पब्लिकली, ताकि सबको ये एग्जाम्पल सेट हो कि कुछ भी शब्द नहीं यूज़ कर सकते हो आप. And I'll remind it again and again in every session so that you all are mindful. आप bibliophiles हैं तो आप शब्दों का चयन अच्छा कर सकते हैं क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बहुत सारा. So yes, with that lastly I would like to wind up. तो बहुत ही अच्छा सेशन होगा. I think मैं YouTube पे देखूंगी. I was very busy and thank you so much कमल सर, आपने संभाल लिया सेशन. अरे Yes, नहीं, सबने संभाला, मैं तो जी बैठा हुआ था यहीं पे. Yeah, thank you so much everyone, and once again I'm extremely grateful to each one of you for giving your Sunday hour. Yeah, thank you so much. Thank you everyone. Happy With that we weekend. Bye come to bye. the end. Bye. Bye.